I am Dr. Meena Chan, Associate Professor and Head, Department of Economics, DAP College for Girls, Yamunanagar. Today the topic is John Robinson Model of Capital Accumulation. John Wallet Robinson, a British economist, a great economist. She was one of the most powerful female economists of her century. In 1979, she became the first woman to be made an honorary fellow of King's College. She contributed a lot to the history of economic thoughts when her book was published, The Economists of Imperfect Competition, in which she coined the term monopsony. In 1942, she also wrote about Karl Marx as an economist in her book, An Essay on Marxian Economics. In 1956, Robinson published The Accumulation of Capital, which contributed to the development of Keynesian economics and growth theory. In 1962, she published Essays in the Theory of Economic Growth, another book on growth theory. John Robinson, after her visits to China in 1953 and 57, had predicted that China would lead the world's economy in the late 20th century. She was a frequent visitor to Center for Development Studies, Trivandrum, India. Now, model, Mrs. John Robinson has given her model of growth in her book, The Accumulation of Capital, in 1956. जॉन रॉबिन्सन ने 1956 में अपनी बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में विकास का मॉडल दिया. John Robinson model clearly takes the problem of population growth in a developing country. It analyzes the influence of population on the role of capital accumulation and growth of output. जॉन रॉबिन्सन ने इस मॉडल में अविकसित देशों में जनसंख्या की समस्या पाई जाती है, किस तरह से वो पूंजी संचय पर और उत्पादन वृद्धि को इन्फ्लुएंस करती है, इसका विश्लेषण किया. इट इज अ सिंपल मॉडल बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम. सिंपल मॉडल है, कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम पर आधारित है. It integrates the classical theory of value and distribution and Keynesian theory of saving and investment. ये मॉडल क्लासिकल थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन को और केन्सियन थ्योरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंटीग्रेट करता है अपने मॉडल में. ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है. This model is based on some assumptions. Number one is the economy is assumed to be laissez-faire closed economy. अर्थव्यवस्था कैसी होगी? laissez-faire होगी, closed economy होगी, सरकार का इंटरफेरेंस कम होगा, इकोनॉमी जो है सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होगी, फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, इकोनॉमी क्लोज्ड होगी. उत्पादन के दो ही फैक्टर्स होंगे, लेबर एंड कैपिटल. लेबर एंड कैपिटल आर द ओनली प्रोडक्टिव फैक्टर्स. जब उत्पादन के दो साधन हैं तो नेशनल इनकम भी इन दो फैक्टर्स में डिवाइडेड होगी और इकोनॉमी में दो ही क्लासेस होंगी, वर्कर्स की और एंटरप्रेन्योर्स की. टोटल इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन capital and labor. There will be two classes, workers and entrepreneurs. Capital and labor are employed in fixed proportions to produce a given level of output. उत्पादन करने के लिए
जब साधनों को लगाया जाता है तो वो एक फिक्स्ड अनुपात में लगाए जाएंगे। लेबर की जितनी भी मांग होगी उतना लेबर मिल जाएगा। देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ लेबर। टोटल वेजेस कितनी होंगी? टोटल वेजेस प्रोडक्ट है रियल वेज रेट एंड नंबर ऑफ वर्कर्स का। रियल वेजेस जितनी हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वर्कर्स से। टोटल वेज बिल is the product of real wage rate and number of workers. Next assumption is total profit is the product of profit rate and amount of capital invested. तो total profits कितने आएंगे? Profit rate जितनी होगी multiplied by amount of capital invested. जितनी कैपिटल लगाई गई है उसको रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और टोटल प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्कर्स अपनी सारी की सारी वेजेस जो हैं वो खर्च करेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे और सेविंग्स कुछ भी नहीं करेंगे। और एंटरप्रेन्योर्स कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे, सारी की सारी इनकम को वो सेव कर लेंगे। उनकी इनकम क्या है? प्रॉफिट्स हैं। सारे के सारे प्रॉफिट्स को सेव किया जाएगा और उसे इन्वेस्ट किया जाएगा। वेज अर्नर्स स्पेंड ऑल ऑफ देयर वेज इनकम ऑन कंजम्पशन सो दे डोंट सेव। एंटरप्रेन्योर्स सेव एंड इन्वेस्ट ऑल ऑफ देयर प्रॉफिट इनकम, दे कंज्यूम नथिंग। देयर इज न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पाई जाती है। इसका मतलब है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो किसी भी फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। ना तो कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी होगी और ना ही वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी होगी। कैपिटल लेबर रेशियो विल रिमेन द सेम एंड प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन price level. Now, model जॉन रॉबिन्सन ने जैसे कहा कि नेशनल इनकम किसका सम है? टोटल वेजेस का और टोटल प्रॉफिट का। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि टोटल वेजेस कैसे निकाली जाती हैं। रियल वेजेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स से। तो इसमें देखो y इज इक्वल टू WN प्लस PK। W क्या है? रियल वेजेस और N क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो WN किसको बता रहा है? टोटल वेजेस को बता रहा है। और टोटल प्रॉफिट्स क्या है? PK। P क्या है? रेट ऑफ प्रॉफिट एंड K क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। सो Y इज इक्वल टू WN plus PK. National income is the sum of total wages and total profit. Now, WN real wages को indicate कर रहा है, PK जो है वो profits को indicate कर रहा है। What will be the rate of profit? इसको find out करने के लिए हम इस equation को देख रहे हैं। WN plus PK is equal to y। ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब पी के हमें रेट ऑफ प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। सो पी के हम इस साइड पर ला रहे हैं इज इक्वल टू y माइनस WN। अब हम P इज इक्वल टू y माइनस WN जो कि इस साइड पे था उसको हमने डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे। अब हम इस इक्वेशन को n से डिवाइड कर देंगे। P इज इक्वल टू yn माइनस WN डिवाइडेड बाय n कैंसिल हो जाता है एंड डिवाइडेड बाय K ओवर n। सो ये रिलेशनशिप आ जाता है हमारे पास में। y ओवर n क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माइनस W रियल वेजेस डिवाइडेड बाय K ओवर n क्या है? कैपिटल लेबर रेशियो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
वाई एन की जगह हमने एल को सब्स्टिट्यूट किया है, के ओवर एन को हमने थीटा से सब्स्टिट्यूट किया है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय थीटा। अब रिलेशनशिप क्या है इसमें? हम रिलेशनशिप देखने के लिए y ओवर n, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर ज्यादा होगी तो प्रॉफिट्स भी अधिक होंगे, और अगर रियल वेज रेट जो है वो कम होती है तो ही रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अधिक होंगे। तो वेजेस और प्रॉफिट के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। के ओवर एन कैपिटल लेबर रेशियो के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर कैपिटल लेबर रेशियो कम है तो ही प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, अगर कैपिटल लेबर रेशियो अधिक है तो रेट ऑफ प्रॉफिट्स कम होंगे। एक्सपेंडिचर इक्वेशन, केन्स ने हमें बताया कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। जो इनकम है वो C प्लस I, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि जो लेबर है वो क्या करता है, अपनी इनकम को, पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूम करता है। तो कंजम्पशन कौन कर रहा है? C कौन कर रहा है? लेबर। एंटरप्रेन्योर, उनकी सेविंग्स क्या हैं? जितने भी उनके प्रॉफिट्स हैं वो सब उनकी सेविंग्स हैं। तो सेविंग्स जो है वो किसके इक्वल आ रही हैं? टोटल प्रॉफिट्स के बराबर। और टोटल प्रॉफिट्स कितने होते हैं? ये लास्ट हमने इक्वेशन में कर लिया था कि P इंटू के, रेट ऑफ प्रॉफिट इंटू अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो Y is equal to C plus I. The assumption is that labor spends its entire income and saves nothing. जो एक श्रमिक है वो अपनी सारी की सारी इनकम को खर्च करता है और कुछ भी नहीं बच जाता। The profit earning class makes saving in the form of profit. Saving must be equal to total profits. Savings in a given period are equal to capital investment multiplied by rate of profits. Now Y is equal to C plus I. Savings और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी पाई जाती है, S is equal to इन्वेस्टमेंट। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, WN प्लस PK। सेविंग्स कितनी होंगी? सेविंग्स आर इक्वल टू PK और इन्वेस्टमेंट कितना होगा? डेल्टा K। अब हम सेविंग्स की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? PK, और इन्वेस्टमेंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टा K से। P कितना आएगा? P इज इक्वल टू चेंज इन K ओवर K। पीछे इक्वेशन में भी हमने P को फाइंड आउट किया था, तो P इज इक्वल टू डेल्टा K ओवर K इज इक्वल टू L माइनस W डिवाइडेड बाय थीटा, या हम इस तरह से भी लिखा था कि YN माइनस W डिवाइडेड बाय K ओवर N। तो इससे हमें पता चलता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? रेट ऑफ प्रॉफिट पर। अब हम इसको डायग्राम में देखेंगे। OY एक्सिस रेट ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं, OX एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? रेट ऑफ एक्युमुलेशन। ये कर्व P कर्व है जो हमें क्या बता रहा है? रेट ऑफ प्रॉफिट as a function of the rate of accumulation that gives rise to it. जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो किसका फंक्शन है? रेट ऑफ एक्युमुलेशन का। A फंक्शन क्या बता रहा है? रेट ऑफ एक्युमुलेशन as a function of rate of profit that induces it. दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट S पर और पॉइंट Q पर। आफ्टर एस क्या हो रहा है? आफ्टर एस जो है रेट ऑफ एक्युमुलेशन जो है
that is more than rate of profit. Accumulation ज़्यादा है इकोनॉमी में and rate of profits कम है, ऐसी सिचुएशन में और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और accumulation भी नहीं होगा. Area between Q and S. इसमें आप देखो क्या ज़्यादा है, रेट ऑफ प्रॉफिट. एक्यूमुलेशंस कम है, रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन कम है, तो फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स और इन्वेस्टमेंट करेंगी क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट्स अधिक है. दे ट्राई टू स्टेप अप द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट. क्यू पॉइंट पे क्या होगा, डिजायर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट्स, मिनिमम प्रॉफिट्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, कि इतने प्रॉफिट्स तो होने ही चाहिए, अदरवाइज फर्म्स जो हैं वो और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. इकोनॉमी में डिफरेंट इक्विलिब्रियम पाथ्स होंगे. मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने उनको एजेस कहा. उन एजेस में एक गोल्डन एज भी है, दैट इज द अल्टीमेट स्टेज. Golden age is a situation of smooth, steady growth with full employment level and full utilization of capital. Golden age वो सिचुएशन है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है, पूर्ण रोजगार स्तर होता है, पूंजी का पूर्ण यूटिलाइजेशन होता है और यहाँ पर स्मूथ स्टेडी ग्रोथ होती है. पॉसिबल एंड डिजायर्ड रेट्स ऑफ एक्यूमुलेशन में इक्वालिटी पाई जाती है. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल दोनों इक्वल होते हैं. डेल्टा एन ओवर एन इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर के. ये जो एज है, ये एज स्टेग्नेशन की एज नहीं है, rather it is an era of plenty. So golden age is a situation of smooth, steady growth with full employment level and full utilization of capital. It arises out of the equality of the desired and possible rates of accumulation. डिजायर्ड एंड पॉसिबल रेट में इक्वालिटी होती है और इसे किसे कहा जाता है, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल. डेल्टा एन ओवर एन इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर के. मिसेस रॉबिन्सन गोल्डन एज इज एन era of plenty and not one of stagnation. अब गोल्डन एज में क्या पाया जाता है, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होती है. रेट ऑफ प्रॉफिट्स टेंड्स टू बी कांस्टेंट. एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन फास्ट इनफ टू सप्लाई प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर ऑल द लेबर. द लेवल ऑफ रियल वेजेस टू राइज विद आउटपुट पर मैन. पॉपुलेशन इज ग्रोइंग स्टेडली. पॉपुलेशन इज ग्रोइंग स्टेडली. अब इसमें क्या होता है, गोल्डन एज में न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, प्रॉफिट्स कांस्टेंट रहते हैं, एक्यूमुलेशन बहुत फास्ट होता है, रियल वेजेस बढ़ती हैं और पॉपुलेशन भी स्टेडली ग्रो करती है. मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने ये मॉडल जो है वर्बल दिया था और के कुरिहारा ने ये रियल मॉडल बनाया. Now, desired rate of accumulation and possible rate of accumulation. What is desired rate of accumulation and possible rate of accumulation? Desired rate of accumulation. It is similar to Harrod's warranted growth rate. Below desired rate, profits will be low and producers, entrepreneurs will not go further. These are the necessary profits to maintain growth. डिजायर्ड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन हरोड की वारंटेड ग्रोथ रेट के सिमिलर है. इस पॉइंट पर प्रॉफिट्स जो हैं वो इतने मिनिमम होते हैं कि ग्रोथ को
हम मेंटेन कर पाते हैं। अगर इससे भी कम प्रॉफिट इकोनॉमी में होंगे तो एंटरप्रेन्योर जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये मिनिमम प्रॉफिट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को मिलना ज़रूरी है। पॉसिबल रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, ये हर रोड की नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ से मिलती है और ये कब पॉसिबल है? इन सम फिजिकल कंडीशंस, जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, टेक्निकल ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन फंक्शन अधिक हो रहा है, ऐसे में ये पॉसिबल होती है। K/N इज इक्वल टू थीटा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू N थीटा। डेल्टा हमने पुट किया है, डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा N थीटा। इसको हम इधर ले आए हैं, डेल्टा N थीटा इज इक्वल टू डेल्टा K। डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा K ओवर थीटा। इसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने थीटा से डिवाइड कर दिया। तो क्या बनी, डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा K ओवर थीटा। अब हमने n से डिवाइड कर दिया, डेल्टा N ओवर n इज इक्वल टू डेल्टा K ओवर थीटा ओवर n। अब हम n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से आप n की वैल्यू ले सकते हो, n इज इक्वल टू K ओवर थीटा, जो कि हमने n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया है। थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा डेल्टा n ओवर n इज इक्वल टू डेल्टा K ओवर K। डायग्राम में OY एक्सिस पे हमने लिया है पर कैपिटा आउटपुट, OX एक्सिस कैपिटल लेबर रेशियो, OX डैश एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। प्रोडक्शन फंक्शन OP प्रोडक्शन फंक्शन है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर हम क्या पता लगा सकते हैं कि कितने आउटपुट पर कितनी कैपिटल लेबर रेशियो है। अब हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है एन टी, जो कि G पॉइंट पर प्रोडक्शन फंक्शन को टेंजेंट कर रही है। तो कितना आउटपुट होगा और कितनी कैपिटल लेबर रेशियो होगी। तो कैपिटल लेबर रेशियो इज K और आउटपुट कितना हो रहा है, A। OA आउटपुट टोटल आउटपुट हो रहा है, इसमें से वेजेस कितनी चाहेंगी, जो आपकी OY एक्सिस पे जहां पे टेंजेंट लाइन आ रही है यहां तक, E से लेकर W तक, OKEW, ये सारा पार्ट क्या बन गया, वेजेस का। और OW वेज रेट आ गई, और A से लेकर W तक या W से लेकर A तक ये आपके प्रॉफिट्स हैं। अब आप देखिए, tan अल्फा और tan बीटा दोनों इक्वल हैं, E से लेकर G तक डिवाइडेड बाय EW इज इक्वल टू OW डिवाइडेड बाय ON। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, इट मीन्स डेल्टा N over N is equal to delta K over K। इक्विलिब्रियम में ये दोनों ग्रोथ रेट इक्वल होती हैं, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये दोनों बराबर नहीं हो। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि जिसमें डेल्टा N ओवर N इज मोर देन डेल्टा K ओवर K, और दूसरी सिचुएशन बनती है कि जिसमें डेल्टा N ओवर N is less than delta K over K। फर्स्ट सिचुएशन करेंगे, डेल्टा N over N is more than delta K over K। ये क्या शो करता है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है दैट इज मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह की सिचुएशन जो है वो पाई जाती है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि इट इज द प्रॉफिट वेज रिलेशन
which pushes the economy back on the path of golden age. कि प्रॉफिट वेज रिलेशनशिप के कारण से क्या होगा, इकोनॉमी दोबारा से गोल्डन एज पर आ जाएगी. हाउ? उन्होंने कहा कि लेबर सप्लाई ज़्यादा पाई जाती है. लेबर सप्लाई ज़्यादा पाने पर क्या होगा, मनी वेजेस कम हो जाएंगी, रियल वेजेस कम हो जाएंगी, जिसके कारण से प्रॉफिट्स अधिक हो जाएंगे, चेंजिंग की ओवर के जो है वो अधिक हो जाएगा. The excess of labor supply would depress the money wage rate, and if the prices remain constant, the real wages would fall. Money wages कम हो जाएंगी क्योंकि लेबर अधिक पाया जाता है, वेजेस में कोई चेंज नहीं है, तो रियल वेजेस कम हो जाएंगी. This fall in real wages would increase the level of profit, which in turn would stimulate the growth of capital. रियल वेजेस के कम होने पर प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और जिससे पूंजी में वृद्धि होगी. इस तरह से गोल्डन एज पर हम दोबारा से आ जाएंगे. सेकेंड सिचुएशन, जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, कम पाई जाती है और पूंजी में ग्रोथ रेट ज़्यादा पाई जाती है. ये सिचुएशन जो है वो विकसित देशों में अधिक होती है. अंडर द सिचुएशन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लेस एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अकर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. इसमें भी पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि हम इक्विलिब्रियम पाथ पर आ जाएं, हम गोल्डन एज में आ जाएं. किस तरह से आएंगे हम? इक्विलिब्रियम कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तकनीकी परिवर्तन होंगे तभी हम संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं. कैसे तकनीकी परिवर्तन होंगे? चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो, चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन लेबर सप्लाई. ऐसा होने पर हम संतुलन को दोबारा से अचीव कर सकते हैं. डिफरेंट इक्विलिब्रियम पाथ्स. गोल्डन एज तो अल्टीमेट स्टेज है, पर और पाथ्स भी पाए जाते हैं, जैसे लिंपिंग गोल्डन एज, रेस्ट्रेन्ड गोल्डन एज, बास्टर्ड गोल्डन एज. लिंपिंग गोल्डन एज किसे कहा जाता है? इसको कंपेयर किया गया है विद द कंसेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट संतुलन पाया जाता है, उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है कि ऐसी सिचुएशन में पूंजी की कमी पाई जाती है, लेबर फोर्स की ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है और पूंजी स्टॉक में ग्रोथ रेट कम होती है. द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज लेस देन द ग्रोथ ऑफ लेबर force. Restrained golden age, where actual growth rate of capital is lower than the desired growth rate. Actual growth rate पूंजी की कम है desired growth rate से. ऐसा क्यों होता है? Due to certain bottlenecks. कुछ रुकावटें हो सकती हैं. Bastard golden age, it is the age where unemployment prevails but real wages remain rigid downwards. बेरोजगार पाई जाती है, लोगों को काम नहीं मिलता, पर रियल वेजेस जो हैं वो कम नहीं होती, वो रिजिड पाई जाती हैं. और एजेस भी पाई जाती हैं. बास्टर्ड प्लेटिनम एज, ग्लोपिंग प्लेटिनम एज, क्रिपिंग प्लेटिनम एज, ट्रोटिंग प्लेटिनम एज. अब हम कंपेयर करेंगे इस मॉडल को हरोड-डॉमर मॉडल से. हरोड-डॉमर मॉडल में कैपिटल एक्युमुलेशन इज डिटरमिन्ड बाय द सेविंग इनकम रेशियो एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी. और जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में कैपिटल एक्युमुलेशन को कौन डिटरमिन कर रहा है? विद द प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी. इन हरोड-डॉमर मॉडल, प्राइम मोबाइल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन इज कैपिटल इटसेल्फ. और जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में क्या है? इट इज लेबर. लेबर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कैपिटल. In Harrod-Domar model,
growth is possible through trade cycles. Mrs. John Robinson neglected the explanation of trade cycles. हरट डॉमर मॉडल की रेलेवेंसी ज़्यादा किस में है? रिच कंट्रीज में। और मिसेस जॉन रॉबिन्सन के मॉडल की रेलेवेंसी ज़्यादा किस में है? कैपिटल पुअर इकोनॉमीज में। इस मॉडल में कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नेग्लेक्ट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है सोशल, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस पर भी डिपेंड करती है, जो कि इसमें इग्नोर किए गए हैं। कांस्टेंट प्राइस लेवल को एज्यूम किया गया है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोज्ड इकोनॉमी अनरियल है। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज आर ओपन rather than closed. Unrealistic assumptions हैं. Technical neutrality doesn't fit in the dynamic process of growth. No role of state. Neglect of different policy implications. सरकार के लिए फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कोई भी सजेशंस नहीं दी गई हैं जिससे अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। फिजिकल कैपिटल को ही इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल को इसमें इग्नोर किया गया है। नो फिक्स्ड टेक्निकल कॉफिशिएंट। इसमें एज्यूम किया गया है कि फिक्स्ड टेक्निकल कॉफिशिएंट होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। Now questions, multiple choice questions. In which book John Robinson gave her model of capital accumulation? The accumulation of capital, the theory of employment, the theory of supply, none of the above. In which year John Robinson gave the model of growth? In 1955, in 1956, in 1954, in 1953. The existence of golden age is the indicator of full unemployment level, full employment level, full profit level, none of the above. According to the John Robinson, national income is the sum of total profit, total income, total wages and total profit, none of the above. Long answer questions. Explain John Robinson model of capital accumulation. Short answer question. Tell 3 assumptions of John Robinson model of capital accumulation. Draw a diagram showing golden age of John Robinson model of capital accumulation. Tell different equilibrium ages in John Robinson model of capital accumulation. Thank you.